Good afternoon, everyone. My name is Jigar Satra from Reliable Prints, and on behalf of Team MMS, thank you everyone for joining for this webinar called Unlock Sales. Uh, I would like to introduce the speaker today. Uh, his name is Mr. Hardik Harsura from FX Business Solutions Private Limited. Uh, he has a rich experience of more than 17 years in the field of quality and process excellence. He is also trained on methods of Six Sigma, Lean, project management, and business process management. Also, he has trained a lot of at least more than 10,000 entrepreneurs. He has also successfully re-engineered processes for top tier accounts like Dell, Fidelity Markets, Optus 3 Global Solutions, Vodafone, amongst many other corporates. Hardik has, founded and conceptualized a methodology called Propel, which is specially designed for small and medium-sized businesses like us, and is widely adopted in Mumbai, Pune, Surat, and other cities in Singapore and Dubai as well. This method is used for growth planning, performance management, business problem solving, and he's currently also authoring a book on Propel methodology. I would like to welcome Hardik uh, and start with his agenda for today. Thank you very much. Yes, Hardik. Thank you very much, Jigar. So I'm going to take a minute to kind of start sharing my screen. But before I do that, in fact, as I do that, let me tell you this, Jigar, thank you very much for this lovely introduction. Some people, I have attended a lot of webinars, like I'm sure आप सभी लोगों ने attend किए होंगे, and sometimes webinar का introduction में the introduction जो देने वाला होता है वो बहुत nervous होता है. तो एक बार ऐसा हो गया था कि इंट्रोडक्शन देने वाले ने शुरुआत की और उसने सोचा बहुत जोश भरी शुरुआत करूंगा. सो ही सेड आई एम गोइंग टू टेल यू अ जोक, एंड देन फिर नर्वसनेस में जोक भूल गया और फिर मुझे इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. सो थैंक यू वेरी मच फॉर नॉट डूइंग दैट, जिगर, एंड गिविंग मी अ नाइस इंट्रोडक्शन. So guys, we are going to be talking about unlock sales. मुझे बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों के साथ, but I thought that it will be more important if I take your questions directly. So I'm going to very quickly and crisply go through the presentation. आप Zoom में आपने I'm sure बहुत time आपने use किया है. Zoom के इसमें you will have places where you can give me reactions. So make sure you give me those reactions so that I know how it is going. And I can pace myself up. In case अगर कहीं पे भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है, put it in the chat box. And अगर बहुत सारे जन बोल रहे हैं कि हमें सुनाई नहीं दे रहा है, then जिगर, can I request you to just let me know? Because अगर एक को सुनाई नहीं दे रहा है, हो सकता है आपके end पे problem है, पर अगर सबको सुनाई नहीं दे रहा है, then मेरे end पे problem है. Don't worry, I have 3 internet connections right now. So in case if things go wrong, I will quickly jump to the other one and I will be back online. So with this, let's start. Unlock sales. अब ये सबका प्रॉब्लम है. पहले थोड़ा ग्राउंड सेट कर लेते हैं. सेल्स अनलॉक करने के लिए हम बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे तो सेल्स अनलॉक ये सिचुएशन में नहीं होने वाला है. हम लोग कोई मैजिक करेंगे तो ये सिचुएशन में सेल्स अनलॉक नहीं होने वाला है. तो ये प्रॉब्लम क्या है वो समझने से पहले थोड़े फैक्ट समझ लेते हैं. आज के फैक्ट, आज की दुनिया के फैक्ट. सबसे पहला, देयर इज नो क्योर फॉर कोविड-19 येट. आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान है समझना. कोविड-19 का कोई क्योर नहीं है. व्हेन यू कैन नॉट सॉल्व एनीथिंग, व्हाट डू यू डू? यू मैनेज. आप मैनेज करते हो उसको. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू एंड इज डूइंग. इसका मतलब क्या? लॉकडाउन वापस से होंगे. अब हो सकता है लॉकडाउन पूरी तरह से जैसे हम पहले थे वैसे ना हो, बट इन बिट्स एंड पार्ट्स इन सम एरियाज लॉकडाउन्स रहेंगे. अभी भी बॉम्बे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लोकल ट्रेन आर नॉट ऑन. जब लोकल ट्रेन शुरू होंगे तब इन्फेक्शन क्या बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, यू डोंट नो. तो हाई चांसेस कि शायद एक ब्रीफ पीरियड के लिए बॉम्बे फिर से लॉकडाउन पे भी जाए. बैंगलोर हैज गॉन इनटू दैट, वेस्ट बंगाल हैज गॉन इनटू दैट, एंड आई नो दिस बिकॉज आई हैव क्लाइंट्स बोथ प्लेसेस.
थर्ड थिंग, लॉजिस्टिक्स इज बिकमिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम, सिंपली बिकॉज एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है और वहां पे लॉकडाउन है या बीच में कहीं लॉकडाउन है, देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। फोर्थ, मैन पावर इज अ प्रॉब्लम। आपके यहाँ पे भी मैन पावर का प्रॉब्लम होगा, इधर यू टर्मिनेटेड देम और दे हैव रिजाइंड बिकॉज यू आर नॉट एबल टू पे देम इन फुल, या फिर वो लोग माइग्रेट हो चुके हैं, यू नो, या वो लोग लॉकडाउन में हैं। इन ऑल केसेस आप और आपके क्लाइंट दोनों मैन पावर से जूझ रहे हैं, मैन पावर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। डिप्लीटिंग रिसोर्सेज, मैन पावर तो मैंने बोल दिया इज वन ऑफ द रिसोर्स, बट लोगों के पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं क्योंकि लोग रुक रहे हैं। तो रुकते रुकते पैसे जब बन नहीं रहे हैं तो जो हैं वो खर्च हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि सबसे पहले लोग एसेंशियल सर्विसेज या एसेंशियल प्रोडक्ट जिसके बगैर नहीं जी सकते उस पे खर्चा करेंगे। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही अंडरस्टूड है। बट असेंशियल हर इंसान के लिए अलग होता है। अब मैं गाड़ी में ट्रैवल कर सकता हूँ, मेरे पास कार है, तो मेरे लिए डीजल भी असेंशियल है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए खाना वही असेंशियल है, वो डीजल तक नहीं पहुंच पाते। तो एसेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पहले शुरू होंगे। और ये आपको जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि क्या शुरू हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, उसी के बेसिस पे तो आप डिसाइड करोगे ना कि आप जो करते हो वो बेचना किसको है। तो एसेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स विल स्टार्ट फर्स्ट। एसेंशियल सब लोग के लिए अलग है, दैट मीन्स एवरीबॉडी, हर इंसान के पास मार्केट जो पहले था वो तो होगा, पर साइज उसका श्रिंक हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। तो पहले जब आप पत्थर फेंकते थे तालाब में, तो कहीं भी फेंको पत्थर गीला होता था क्योंकि पानी हर जगह था। अब पानी कम हो गया तो कहीं कहीं पानी बचा हुआ है, अब सोच समझ के पत्थर फेंकना होगा। वो जो पहले करते थे ना कि अपने आप वॉक इन कस्टमर आ जाते थे, अपने आप सब कुछ हो जाता था, वो नहीं होना है। सेकेंड थिंग, एसेंशियल सर्विसेज के बाद जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस शुरू होंगे वो बिजनेसेस होंगे जो एसेंशियल बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। तो वैसे बिजनेसेस जो हैं वो सेकंड लेयर पे आएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर वो बिजनेसेस को सपोर्ट करने वाले बिजनेसेस जो हैं वो थर्ड लेयर पे आएंगे। तो इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो इस तरीके से होने वाला है। अब कितना टाइम लगेगा, अगर ये आपको कोई भी बता रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी, आज एक व्हाट्सएप पे मैसेज देखा मैंने जहाँ पे एक आदमी डॉक्टर को पूछ रहा है, सर पैंडेमिक व्हेन विल इट गेट ओवर, एंड द डॉक्टर रिस्पॉन्ड्स, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट को छोड़ के और किसी को भी नहीं मालूम है ये पैंडेमिक कब खत्म होने वाला है। तो डोंट कीप आस्किंग दैट क्वेश्चन, डोंट कीप स्पेक्युलेटिंग, क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है आपकी जिंदगी में, आपके कस्टमर की जिंदगी में, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो मत पूछो। दिस इज द न्यू नॉर्मल। तो ये न्यू नॉर्मल जो एक नया बज़वर्ड है ना, यही है न्यू नॉर्मल। अब इससे कुछ और होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसा ही रहने वाला है। बट ऑफ कोर्स हमारी दुनिया है, राइट? हमारी दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दिस इज द न्यू नॉर्मल। और ये नॉर्मल में काम करना हमें सीखना है, एंड ये नॉर्मल में हमको सेल्स को अनलॉक करना है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ सेल्स इज एन आर्ट। लोग क्यों खरीदते हैं, क्यों नहीं खरीदते हैं, आपके बिजनेस को आप पोजीशन कैसे करते हो, इज अ साइंस। बट जिस हिसाब से आप उसको अप्लाई करते हो, कौन से टाइम पे क्या बोला जाता है, कैसे आप सोचते हो अपने सेल्स स्ट्रैटेजी को, वो सारा आर्ट है। एंड हर आर्टिस्ट को अपना आर्ट सही से परफॉर्म करने के लिए, टू परफॉर्म इट रियली वेल, ये जो है ना, इसको शांत और सही ठिकाने पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको सही पे ध्यान रखने के लिए इसके अंदर जो खाना जा रहा है ना, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और वो कंट्रोल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज मैं देखता हूँ ना, वो है एक एंटरप्रेन्योर दूसरे एंटरप्रेन्योर के साथ, एक बिजनेस ओनर दूसरे बिजनेस ओनर के साथ गलत चीजों पे बात कर रहे हैं। और ये करने से आपका सिर्फ दिमाग खराब होगा, आप एक्शन नहीं कर पाओगे, आप अटक जाओगे। तो दो तरीके के लोग मुझे दिखते हैं। एक, वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। जब भी आपको कोई ऐसा बंदा मिले ना जो आपको बोले कि नहीं ये तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाएगा, अभी अगस्त से तो सब खुल जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा, या वेरिएंट्स ऑफ दैट, तो आपको पूछना चाहिए, उसको नहीं, वो नहीं बताएगा, अपने आप को
या तो ये बंदा कुछ अलग टाइप का है, क्या है वो मैं बताऊंगा। दूसरा, एक बहुत ही पेसिमिस्टिक बंदा, मतलब वो बोल रहा है कि अभी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। दोनों भी गलत है, दोनों भी गलत है। जो ऑप्टिमिस्टिक गाय है उसको पूछो अपने आप से कि इसके पास साला ज्यादा पैसा है लगता है, ये सस्टेन कर सकता है ना ये पीरियड, इसीलिए बोल रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ खुल जाएगा। बिकॉज ही डज नॉट वांट टू एक्शन, उसको कुछ चेंज नहीं करना है, वो रुक सकता है। दैट इज व्हाई ही इज सेइंग दैट। सेकंड, या तो वो असेंशियल बिजनेस में है या नियर असेंशियल है, टीयर 1 टीयर 2 में है, या वो ऐसी इंडस्ट्री को प्रिंटिंग सप्लाई कर रहा है जो इंडस्ट्री अभी शुरू है, इसीलिए उसको दिक्कत नहीं हो रही है, इसीलिए वो ऑप्टिमिस्टिक है। तो वो जो बात कर रहा है ना उसके पीछे का राज समझो, उससे फिजूल में इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। ओवर ऑप्टिमिज्म और ओवर पेसिमिज्म बोथ आर बैड, आपके सेल्स के दिमाग को वो कचरा कर देगा। तीसरा, ही कुड बी वेरी स्कैर्ड, बहुत डरा हुआ आदमी हो सकता है, वो भी ऑप्टिमिस्टिक होता है। डरा हुआ आदमी ऑप्टिमिज्म इसलिए बात करता है क्योंकि वो खुद को कन्विंस कर रहा है नहीं 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 सब सही है, सब सही, बद्दू सारू छे। ऐसे आदमी के साथ ज्यादा टाइम बिताओगे तो आप सेल्स आगे नहीं कर पाओगे ये सिचुएशन में। और क्यों नहीं कर पाओगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि करना क्या है वो जब समझोगे तो ऐसे आदमियों के साथ बात करोगे तो नहीं होगा। तो ओवर ऑप्टिमिस्टिक, स्टे लिटिल अवे। ओवर पेसिमिस्टिक, वो बंदा हो सकता है उसका बिजनेस बहुत ही खराब तरीके से पिट गया है, इसलिए उसको सब अंधेरा दिख रहा है। क्योंकि हमारा दिमाग बहुत तेज है, हमारा दिमाग जो भी हमको मिलता है ना हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 100 इंटू 1000 और हमारे दिमाग में स्टोरियां बना लेते हैं। यू डोंट हैव टू मीट दिस गाय। सेकंड, ट्रेडिंग ऑन डिफेंस। शायद उसका धंधा ही ऐसा है कि डरा के बेचे, कंसल्टेंट डराएंगे, आपका तो धंधा की वाट लग गई, आप कुछ नहीं कर पाओगे, सही नहीं करोगे तो मेरी सर्विस नहीं लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। डोंट ट्रेड ऑन डिफेंस। थर्ड, पीपल हु आर नॉट लीडर, जो चाहते हैं तेरा भी खराब हो रहा है ना, मेरा भी खराब हो रहा है ना, सबका खराब हो रहा है ना, तो प्रॉब्लम नहीं। दे वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ वॉट द मेजोरिटी से। तो आपको करना क्या चाहिए, यू हैव टू बी विथ प्रैक्टिकल लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। प्रैक्टिकल लीडर्स मतलब कैसे लोग, प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सबसे खराब पॉसिबिलिटी के लिए, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी, और ये दोनों चीजों को ध्यान में रख के एक्शन कर रहे हैं, वैसे लोगों के साथ ही आप लोग बात करो। क्योंकि और किसी भी लोगों के साथ बात करोगे तो आपके जो एक्शंस होंगे ना सेल्स करने के या कुछ भी करने में, वो उसी तरीके से होंगे। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक आदमी के साथ बात करोगे तो आप सब कुछ अंधाधुंधी खर्चा करना शुरू कर दोगे, निकलेगा कुछ नहीं। बिकॉज एवरीबडी शाउटिंग ना ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन कर रहा है तो मैंने भी डाल दिया ऑनलाइन में समझे बगैर, तो वो नहीं करना है। कोई बोल रहा है बहुत ही खराब होने वाला है, बहुत ही खराब होने वाला है, तो हम रुक गए कि हाँ देखते हैं अभी अगले महीने क्या होगा, फिर देखते हैं उसके बाद वाले महीने क्या होगा, फिर देखते हैं उसके, मतलब कोई आके अपना घर साफ नहीं करने वाला है, हमको ही करना है। एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड टेक एक्शन। ना एक चीज जो जिगर ने आपको नहीं बोली, क्योंकि शायद जिगर को भी नहीं पता है इतना डिटेल में, मेरा बिजनेस जो है लॉकडाउन जब ही अनाउंस हुआ, मैं कंसल्टिंग करता हूँ, सारे क्लाइंट 100% क्लाइंट स्टॉप्ड, all of them stopped. Right now I am at around 40% older clients who have started. And what have I done since the lockdown? मैंने 50 से भी ज्यादा YouTube के और Facebook पे वीडियोस बनाए। If you're on Facebook and you're friends with anybody who's a friend with me, you have definitely come across my video. हो सकता है आपने देखा नहीं है, but you will definitely come across my video. मैंने कम से कम 30 से ज्यादा वेबिनार फ्री, कम से कम 10 से ज्यादा Q&A सेशन, यानी पूरा 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चंस लेके, कम से कम 10 से 12 ऑनलाइन लाइव कोचिंग सेशन मैंने किए। इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट ये आया कि मेरे पास 4 नए प्रोजेक्ट्स हैं। So I have 5 new projects, each one paying me 1 lakh rupees or more every single month. और ये सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, सारा 100%। मेरा कोई भी कंसल्टेंट ट्रैवल नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। सो इट इज पॉसिबल इफ यू आर काम, दिमाग आप शांत रखो और एक्शंस लेना शुरू करो। डोंट बी ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, गलत जाओगे। डोंट बी टोटली पेसिमिस्टिक, नेगेटिव मत हो जाओ, फिर भी गलत जाओगे। बी न्यूट्रल,
शांति से सोचो और आगे का एक्शन करो। नाउ एक्शन पे आ जाते हैं। एक्शन करना क्या है? तो अनलॉकिंग सेल्स। अब सेल्स करने के कभी भी फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए। ओके, मेरा काम है एज अ कंसल्टेंट आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है ना उसको क्लैरिफाई करना। तो आपको मैं खुशखबरी देता हूँ, सेल्स अनलॉक करने के सिर्फ 4 ही तरीके हैं, 5वां भी नहीं है। तो 4 में से एक ही सिलेक्ट करना है आपको। आसान हो गई बात। और वो 4 का 5वां नहीं है, ये मैं आपको प्रूव करूंगा। इनफैक्ट आपको समझ जाएगा, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। 2 चीजें होती हैं सेल्स करने में। एक होता है प्रोडक्ट जो आप कर रहे हो, किस टाइप की प्रिंटिंग कर रहे हो। दूसरा होता है मार्केट, आप किसको वो प्रोडक्ट दे रहे हो, किसको वैसे प्रोडक्ट की जरूरत है। अब मार्केट और प्रोडक्ट, ये सभी चीजों को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। मार्केट, करंट मार्केट, प्रोडक्ट जो आज आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो। नया मार्केट, जो जो मार्केट में आप सप्लाई नहीं कर रहे हो शायद, क्योंकि हो सकता है आपको पता ही नहीं है ऐसा कोई नया मार्केट है। और नया प्रोडक्ट, जिस टाइप की प्रिंटिंग शायद आप नहीं कर रहे हो या जिस टाइप का काम आप नहीं ले रहे हो, वो हो गया नया प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या? हमारे पास सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी, करंट मार्केट में करंट प्रोडक्ट को ज्यादा बेचो। अब इसको बोलते हैं पेनिट्रेट, यानी सेम कस्टमर को आप, सेम टाइप के कस्टमर को आप ज्यादा बेचने की कोशिश करो ना। मुझे मालूम है ये तो आप कर रहे हो और यही दिक्कत आ रही है, करेक्ट और नो? यहाँ इसीलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि डिमांड गिर गया है, सप्लाई उतने का उतना है। ठीक है। अब दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो, आप नए मार्केट में जा सकते हो करंट प्रोडक्ट लेके। अब नया मार्केट क्या हो सकता है वो मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगा। प्रोडक्ट सेम होगा, मार्केट जो है जिसको बेचोगे वो नया होगा। थर्ड जो हो गया वो है मार्केट आपका सेम होगा, पर उनको कुछ नई चीज बेचोगे जो उनके आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है, उसको बेचोगे। अगर ये तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकते तो आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी अपना धंधा बदलना चाहिए। अब ये जो चौथा वाला पॉइंट है ना, उससे घबराना नहीं है। देखो, जब सर्दी खांसी होती है तो हम क्या करते हैं, सर दर्द करता है तो हम क्या करते हैं, हम क्रोसिन लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हमको मलेरिया हो गया तो हम क्या करते हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं। कैंसर हो गया तो क्या करते हैं, हम कीमोथेरेपी करते हैं। ये करना ऑप्शन नहीं होता है। जितना गंभीर प्रॉब्लम है उतना ही खतरनाक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन बिल्कुल होता है। अब कोविड-19 हर मानसून में तो हमको हाई करने आता है नहीं, तो ये कैंसर से भी खतरनाक चीज है जो हमारे साथ हुई है। अब इसके अंदर रो के तो मतलब है नहीं, ज्यादा पॉजिटिव होके भी मतलब नहीं है। ये सिचुएशन है, इसको एक्सेप्ट करके ये 4 में से कोई एक डिसीजन लेके हमें आगे बढ़ना शुरू करना है। अभी इसमें एक्शन क्या लेना है? सबसे पहला जो काम करना है आपको वो है थिंक ऑफ द, बनाते थे वो लोग फोटो की और वो बेचते थे। कोडैक का ही खुद का इंजीनियर, वो कोडैक के बोर्ड को जाके उसने बताया था कि मैंने डिजिटल कैमरा बनाया है, ये डिजिटल कैमरा से रील्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरे बोर्ड ने हंस दिया उसके ऊपर, उसको बोला ये बहुत क्यूट आइटम है, किसी को बताना मत। उनको लगा कि हम रील के धंधे में थे, पर वो रील के धंधे में नहीं थे, वो धंधे में थे यादों के। रील सिर्फ मीडियम था, अगर मीडियम को चेंज कर दिया तो यादें तो सबको चाहिए ना। इट डजंट मैटर इफ इट कम्स ऑन रील या सॉफ्ट कॉपी, इट डजंट मैटर। अगर वो लोग ने वो सीख लिया होता तो पहला डिजिटल कैमरा बनाने वाला कोडैक का एम्प्लॉय था। इमेजिन, दे वुड हैव बीन अ पायनियर व्हेन इट कम्स टू डिजिटल फोटोग्राफी, बट दे वर नॉट। दे डिनाइड दैट दे एक्सेप्टेंस एंड फेल हो गए। आपको यही करना है। रियलिटी में आपका कोर क्या है? एज अ प्रिंटर, व्हाट इज योर कोर? आई टेल यू इन माय लैंग्वेज, इफ आई अंडरस्टैंड इट राइट। मेरे हिसाब से एक प्रिंटर के पास मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि एक प्रिंटर मुझे मेरी बात मेरे प्रोस्पेक्ट तक कैसे पहुंचानी है, या मेरी बात मेरे एम्प्लॉयज तक कैसे पहुंचानी है, या मेरी बात किसी ऑपरेटर तक कैसे पहुंचानी है, वो कम्युनिकेट करने में मुझे हेल्प करता है। इधर ब्रो
इधर कोलेट्रल प्रिंट करके, डायरी प्रिंट करके, लेबल्स प्रिंट करके जो मेरे एम्प्लॉयज शान से पहनते हैं और फ्लॉन्ट करते हैं, या फिर मशीन के ऊपर जो ऑपरेटिंग स्टिकर्स होते हैं वो प्रिंट करके, या मैनुअल्स जो होते हैं हाउ टू यूज अ मशीन वो प्रिंट करके। मेरे को प्रिंटर क्या करके दे रहा है? मेरे को प्रिंटर मेरे को जो बोलना है वो आसानी से कम्युनिकेट करके दे रहा है। अब वो पेपर पे कर रहा है या कहीं और कर रहा है, डजंट मैटर। सो थिंक ऑफ योर कोर फर्स्ट, कि आपने प्रिंटिंग करते करते कौन सी ऐसी स्किल अक्वायर की है जो शायद आपके कॉन्शियस दिमाग में नहीं है, पर थोड़ा सोचोगे ना तो आपको याद आएगी कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, जो आज की जरूरत है। और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको वो जरूरत पकड़ के करंट मार्केट में ज्यादा पेनिट्रेट करना है, नया मार्केट डेवलप करना है, नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, या फिर धंधा ही चेंज कर देना है, डाइवर्सिफाई करना है। द सेकेंड थिंग जो आपको करना चाहिए टू अनलॉक सेल्स इज अडॉप्ट क्विक मार्केटिंग। अभी पंगा तो ये है कि हम सारे छोटे बिजनेसेस ना मार्केटिंग करते ही नहीं है। मार्केटिंग का मतलब होता है हाथ उठा के बोलना मैं मौजूद हूँ, सबको बताना कि मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ। 90% of the time small and medium sized businesses don't do any form of marketing। कोई टाइप का लीड जनरेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट ही इतना जबरदस्त था, अच्छा था कि ऑटोमेटिकली हमारा धंधा चल जाता था। अब वो सिचुएशन नहीं है। देखो ये लॉकडाउन ने क्या किया मालूम है? लॉकडाउन ने हमारे बिजनेसेस में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे पर्सनालिटी में जितने भी लूप होल्स थे ना, वो सारे लूप होल्स को बड़ा करके, मैग्नीफाई करके हमारे सामने रख दिया है कि अब सुधारो। ये एक लूप होल था एसएमई में कि हम मार्केटिंग करते ही नहीं थे। अब वो सामने आ गया है कि अब मार्केटिंग नहीं करोगे तो धंधा नहीं चलेगा। क्विक मार्केटिंग करना है, यानी ये नहीं करना है कि आज आपने डिसाइड किया, फिर 1 महीना लगा आपको वो सब क्रिएट करने के लिए, और फिर 1 महीने के बाद आप मार्केट में उतरे वो बताने के लिए। नहीं, यू हैव टू बी क्विक, समथिंग दैट यू कैन डू रैपिडली। अब जरूरी नहीं है कि सबसे बेस्ट ही करना है, बेस्ट सुधरते जाएगा। आप मेरे यूट्यूब वीडियोस देखो पुराने वाले, आप मेरे को गाली दोगे कि इसका साउंड बेकार है, इसका पिक्चराइजेशन बेकार है। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। द पॉइंट इज कि मेरा वीडियो दूसरे के पहले गया ना, मेरे को देखा ना, कम से कम मेरा चेहरा देख के ये तो बोला ना कि अच्छा ये आदमी है जो ऐसे वीडियो बनाता है, बेकार वीडियो है पर बनाता है। अगली बार जब वो वीडियो सुधरते जाएगा वो मुझे याद रखेगा कि हाँ इसके वीडियो सुधर रहे हैं। पर वो आदमी जो यही सोच रहा है कि बेस्ट वीडियो बनाऊं तब भी मैं बाहर निकलूं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो वेट कर रहा है। जब तक वो वेट करेगा तब तक मैं उसके वाले कस्टमर जो उसके पास आ सकते थे उसको मैं खा के निकल जाऊंगा। तो क्विक मार्केटिंग करनी है। थर्ड, जब कन्वर्जन कम हो, यानी पहले 10 लोगों को मिलते थे तो 10 के 10 कन्वर्ट होते थे, फिर 10 लोगों को मिलते थे तो किसी लोगों के लिए 8 कन्वर्ट होते थे। आज 100 को मिलोगे तो 2 कन्वर्ट होंगे। अगर आज आपको 8 कन्वर्ट करने हैं तो मल्टीप्लीकेशन कर लो, कितने लोगों को मिलना पड़ेगा। तो आपका जो फनल है ना उसको लार्ज कर दो। अब यहाँ पे ना आपको एक बात ध्यान में रखनी, अगर आप क्विक हो और दूसरा क्विक नहीं है तो आप रेस जीत जाओगे। इसका मतलब क्या? एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ। 2 दोस्त जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद वहां पे वो लोग ने शेर की दहाड़ सुनी। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला मैं तो भाग रहा हूँ। तो दूसरा दोस्त हंस पड़ा, बोलता बेवकूफ, तुझे लगता है तू शेर से ज्यादा तेज भाग पाएगा? तो इसने जवाब दिया मुझे शेर से ज्यादा तेज नहीं, मुझे तो सिर्फ तुझसे ज्यादा तेज भागना है। बस वही है। अगर आप क्विक मार्केटिंग कर लोगे और आप लार्ज फनल बना लोगे तो जो कस्टमर किसी और के थे या हो सकते थे वो आपके हो जाएंगे। आपको दूसरे से फास्ट भागना है। अभी हमारे वेबिनार में जितने भी लोग हैं, 41 लोग हैं, मैं 100% बोलता हूँ ये 41 में से भी लोग ऐसे होंगे जो ये वेबिनार के बाद कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो घर जाएंगे, वही ओवरली पेसिमिस्टिक आदमी के साथ बात करेंगे, बोलेंगे अरे कुछ नहीं पूरा दुनिया बिगड़ गया, या ओवरली ऑप्टिमिस्टिक आदमी के साथ बात करेंगे कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं बरसों करेंगे, कि जीना तो बरसों है, कुछ नहीं होगा, जो सबका होगा वो मेरा होगा, देखते हैं। उन सभी लोगों का मार्केट आप चबा सकते हो अगर आप क्विक मार्केटिंग और लार्ज फनल करो तो। यहाँ पे जितना मार्केट शेयर आप लेके बैठे हो, सही एक्शन से वो मार्केट शेयर को इंक्रीज किया जा सकता है। एक्शन कीजिए। द फोर्थ थिंग, ट्रस्ट बेस्ड मार्केटिंग करना जरूरी है।
देखिए, आप अगर नए मार्केट में जाओगे या आप एडिशनल कस्टमर्स ढूंढने जाओगे, तो पहले कस्टमर प्रोडक्ट को फील करके देखता था। पहले कस्टमर बोलता था टेस्ट प्रिंट दे दो, मैं देख लेता हूँ। आज वो नहीं कर पाएगा, ही कैन नॉट फिजिकली इंस्पेक्ट। तो वो कैसे आप पे भरोसा रखेगा कि आपके पास ऑर्डर देने से सही प्रोडक्ट हुआ? वो भी तो वैसा ही है, वो भी तो बोलेगा कल देखते हैं, परसों देखते हैं। पर वो ये कब नहीं करेगा, कब वो आपको ऑर्डर देगा? तब देगा जब उसको ऐसा लगेगा कि प्रिंटिंग के बारे में ये आदमी सबसे बढ़िया बात कर रहा है, ये आदमी को प्रिंटिंग का सबसे अच्छा नॉलेज है। जब उसको ये समझ में आएगा तभी तो वो करेगा। ये समझने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? आप है व्हाट मेक्स अ गुड बुक को बताना शुरू कीजिए। मेक फेसबुक पोस्ट, मेक यूट्यूब वीडियो एंड स्टार्ट टेलिंग पीपल व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट वन डज जब आप ये स्टिकर बनाते हो, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट वन डज जब आप ब्रोशर बनाते हो, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ व्हेन यू सिलेक्ट द साइज, what are the mediums that are right for this kind of printing and that kind of printing, फलाना दिखना। जब आप ये करोगे ना, तो ये सुन के बंदा बोलेगा ये बंदे को पूरा मालूम है, राहुल कुलकर्णी इज द बेस्ट पर्सन, जिगर सत्रा इज द बेस्ट पर्सन। प्रिंट करना है, जब मैं इन्हीं के पास से सीख रहा हूँ तो इन्हीं को ऑर्डर दे देता हूँ। तो ये करना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट डेवलप कीजिए एजुकेशन करके। अनदर पॉइंट, दिस इज नॉट द टाइम फॉर हार्डकोर कंपटीशन। In fact, this is a time for collaboration and affiliation. यानी आपके पास एक किस्म का मशीन है, दूसरे के पास दूसरे किस्म का मशीन है। अगर आपको दूसरे किस्म के जॉब आ रहे हैं ना, तो ले लो, वो दूसरे के पास से कोलैबोरेट कर लो। अगर उसके पास कोई और जॉब आ रहा है तो ले लो, उसको बोलो आपके साथ कोलैबोरेट कर ले। अगर झारखंड में जॉब आ रहा है और ऑनलाइन पे आपको ऑर्डर आ गया, तो ये मत बोलो नहीं हम तो फोर्ट बैठे, हम झारखंड का ऑर्डर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इतना बड़ा एमएमएस क्यों बनाया थे? बनाओ, झारखंड में भी आप ऑर्डर ले सकते हो, वहां के प्रिंटर को दो और उसको फॉरवर्ड करो। अच्छा, ये करते करते गलतियां होंगी क्या? कोई आपको चीट करेगा क्या? 100% करेगा। पर ये नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। कोशिश करने से गिर सकते हो, पर कोशिश की तभी तो गिरे ना। फेलियर इज अ प्रूफ दैट यू आर मूविंग अहेड, सो गो अहेड। 4 फेलियर के सामने अगर 40 अच्छा काम हो जाता है तो क्या खराब है? सो कोलैबोरेट, अफिलिएट। हो सकता है प्रिंटिंग का काम नहीं आ रहा है, डिजाइनिंग का काम आ रहा है। आपके पास लोग बोल रहे हैं ओके ब्रोशर में को प्रिंटेड नहीं चाहिए, ई ब्रोशर चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? आप ई ब्रोशर का काम ले लो, वो करवा लो, अफिलिएट कर लो। जो बिक रहा है उसको बेचो, बिजनेस उसी का नाम है। अभी लोग पूछेंगे कि ये सारी चीजें करने के लिए क्विक मार्केटिंग आप जो बोल रहे हो, यूट्यूब वीडियो, ये तो मुझे बनाने नहीं आता है, इसको एडिट कैसे करें? तो क्या मैं इसको सीखूं या मैं किसी प्रोफेशनल को आउटसोर्स करूं? ये गलत सवाल है। लर्न या आउटसोर्स, ये सवाल ही नहीं है। आपको आउटसोर्स करना चाहिए क्योंकि वक्त आपको बचाना है। यू डोंट हैव टू वेट। वो टॉर्टोइस और रैबिट का रेस है ना, ये वैसा वाला सिनेरियो है। इवन इफ यू हैव बीन अ टॉर्टोइस इन द पास्ट, इफ यू एक्शन टुडे व्हेन द रैबिट इज स्लीपिंग, यू विल क्रॉस, यू विल विन। बहुत ऑटोमेटिकली। आप बहुत शानदार काम नहीं करोगे ना तो भी चलेगा, आप काम करोगे ना तो आगे बढ़ जाओगे। रुके रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा। तो आउटसोर्स करिए, क्विक एक्शन में आइए, क्विक मार्केट में उतरिए। जब बाकी सब सोच रहे हैं लॉकडाउन खुलेगा तब देखेंगे, आदमी आएगा तब देखेंगे, अरे अभी तो इतना फैक्ट्री चालू करने को इतना ऑर्डर ही नहीं है तब देखेंगे, ये सब लेट देम बी, लेट देम बी। यू स्टार्ट। आपका फैक्ट्री नहीं चालू करना है, मत करो ना। किसी का फैक्ट्री चालू रहेगा, उसमें प्रिंट कराओ। किसने बोला है कि आपका फैक्ट्री में प्रिंट होना चाहिए? 10 रुपए कमा रहे थे, अभी 2 रुपए कमाओगे ना, पर 2 रुपए इज बेटर देन 0। और प्लस वो क्लाइंट तो आपको पहचान गया, यू डिड द गुड वर्क, गो हेड डू इट। तो आपको आउटसोर्स करना है। आउटसोर्स करने के बाद जो रिव्यू करना है, देखना है कि वो काम सही हुआ या नहीं, और रिव्यू करते वक्त सीखते जाना है वो काम को। तो अगर फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, लिंक्डइन कर रहे हो, ट्विटर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आउटसोर्स करो, प्रोफेशनल का हेल्प लो, ताकि कंफ्यूज स्टेट में ना रहो। सही चीज करना शुरुआत कर दो और फिर वो प्रोफेशनल के साथ रह रह के सीख जाओ। धीरे धीरे सीखना शुरू करो, और हो सकता है एक टाइम ऐसा आएगा जब आप खुद कर पाओगे या आप खुद की टीम बना पाओगे। बट तब तक डूइंग द राइट थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट।
डोंट बी पेनी वाइज पाउंड फुलिश। चाराना बचाने के लिए 1 रुपए का नुकसान मत कर दो। Your goal when you hire a professional is to take the benefits the professional brings to the table. Your goal is not to negotiate that 20% and save that. That's too little a goal. तो वो मत करो, ठीक है। अब ये एक्शंस हमने पढ़ लिए। अब अपॉर्चुनिटी है क्या, और है तो कहाँ है? तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी भरपूर है, और मैं आपको बताऊंगा कैसे ढूंढना है, बहुत आसान है। अपॉर्चुनिटी है केमिकल्स में, अपॉर्चुनिटी है स्टील्स में, स्टील का जो भी काम करते हैं, अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, अपॉर्चुनिटी है हेवी मशीनरी में, अपॉर्चुनिटी है फर्नीचर में, अपॉर्चुनिटी है पेपर, आपका डायरेक्ट इंडस्ट्री बाय द वे, अपॉर्चुनिटी है रबर आर्टिकल्स में, अपॉर्चुनिटी है ग्लास आर्टिकल मैन्युफैक्चरर्स में, अपॉर्चुनिटी है मेटल आर्टिकल्स मैन्युफैक्चरर्स में, अपॉर्चुनिटी है फार्मा में, अपॉर्चुनिटी है फर्टिलाइजर्स में, अपॉर्चुनिटी है प्लास्टिक टॉयज में। और ये मैंने सिर्फ 12 का नाम दिया है। 370 ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं जिसमें आज के टाइम पे भी अपॉर्चुनिटी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ब्लूमबर्ग और इकोनॉमिक टाइम्स बोल रहा है। India plans to impose strict rules on tariff on Chinese imports. They've already started doing. In fact, Forbes का एक रिपोर्ट है जहां पे वो लोग बता रहे हैं कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर स्ट्रगलिंग बिकॉज उनका जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है। कब तक स्ट्रगल करेंगे भाई? हमारे देश में पीपीई इक्विपमेंट एक भी नहीं बनता था, आज वी आर द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ पीपीई इक्विपमेंट। हम बहुत ही जुगाड़ू लोग हैं, जो चीज सप्लाई चाइना से नहीं होगी ना, हम खुद यहाँ बनाना सीख लेंगे। वो सभी लोगों को मैनुअल्स की जरूरत पड़ेगी, वो सभी लोगों को स्टिकर्स की जरूरत पड़ेगी, वो सभी लोगों को पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। पर यू नो व्हाट, अगर आप यहाँ बैठे बैठे ये सोच रहे हो कि आपके दुकान में लोग चल के आएंगे, तो आप रेस हार जाओगे, क्योंकि ये दुनिया वो दुनिया नहीं है जो मार्च के पहले वाली थी। तो ये दुनिया में एक्शन करना पड़ेगा, और जो सबसे पहला भागेगा, जो सबसे तेज भागेगा, वो जीतेगा। रॉकेट साइंस नहीं है। कॉमर्स मिनिस्ट्री वर्किंग टू आइडेंटिफाई की सेक्टर्स फॉर मेकिंग इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब। ईटी नाउ। हमारी दुनिया बहुत फनी है। आप गूगल में जाके जो सर्च करोगे ना, वैसे रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे। अगर आप गूगल में जाके सर्च करोगे इज महाराष्ट्र कोविड केसेस इंक्रीजिंग, it will give you articles which will tell you it is increasing. If you put is the COVID-19 improving, it will give you articles which will tell you it is improving. आपको क्या करना है? आपको सर्च करना है, और ये करना जो अभी मैं बोल रहा हूं वो करो। आप सर्च करना अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन प्रिंटिंग इंडस्ट्री इन ऑफ कोविड, ये गूगल में सर्च करो। आपको खुद को समझ में आएगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैंने किया है, आपको खुद को समझ में आएगा कि ये इंडस्ट्री में है। अब सवाल उठता है स्टेप 2 कि ये इंडस्ट्री तक पहुंचा कैसे जाए, और सेल्स अनलॉक करने के लिए किया क्या जाए, वो भी बताऊंगा। मेरे रेकमेंडेशन, सबसे पहला, गो B2B विथ लार्ज कॉर्पोरेट्स। छोटा छोटा काम जो आ रहा था ना, वो छोड़ दो, वो उसकी उम्मीद मत रखो, वो आएगा और वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि हर छोटा आदमी आज स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि वो छोटा था, उसके बाद लिमिटेड फंड से लॉकडाउन सर्वाइव नहीं कर पाया होगा, बिजनेस बंद हो गया होगा, स्ट्रगलिंग होगा। एक अंधा दूसरे अंधे को कुछ नहीं बता सकता। तो गो विद पीपल हु आर 10 टाइम्स 100 टाइम्स लार्जर देन यू। B2B लार्ज कॉर्पोरेट्स में आप जाइए। सेकेंड, क्रिएट ऑनलाइन इकोसिस्टम। यू हैव टू बिकम लॉकडाउन प्रूफ, यानी क्या प्रोडक्ट्स आपके पास से ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, वहां से लेके ऑर्डर ऑनलाइन लेने तक, वहां से लेके लॉजिस्टिक्स मैनेज करने तक, सारी चीजें ऑनलाइन इकोसिस्टम बनाओ जिसमें हो सकता है। वेबसाइट हो गया, आपके मीडियम के ऑर्डर्स हो गए, सारा ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट करो। आपके कंपनी के इंटरनल वर्किंग में भी ऑनलाइन सिस्टम लागू करो। मैं अभी भी लोगों से मिल रहा हूँ, SME से मिल रहा हूँ ओवर जूम। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं हार्दिक भाई जब तक आप मिलोगे नहीं ना तब तक मजा नहीं आएगा। तो आई टेल देम, मजा करने का है तो कॉमेडी शो देखो। अगर धंधा इंप्रूव करने का है तो जूम में गले मिलने के अलावा हम बाकी सब कर सकते हैं, और नहीं करना है तो रुको। जब 2-4 क्लाइंट चले जाएंगे,
10-12 लाख और डूब जाएंगे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तब आना। और तब लोग आए भी हैं। तो ये फनी सिचुएशन है। यू हैव टू रन, यू डोंट हैव टू वेट। क्रिएट एन ऑनलाइन इकोसिस्टम, स्टार्ट। अब वो B2B लार्ज कॉर्पोरेट्स तक पहुंचे कैसे? एक ही टूल है, वही यूज करो। ज्यादा एनालाइज पैरालाइज मत हो जाओ। कीप इट क्लियर, कीप इट क्लीन, कीप इट स्ट्रेट। यूज लिंक्डइन। लिंक्डइन के अंदर सेल्स नेविगेशन नाम की एक चीज होती है। आपको पहला महीना फ्री में वो लोग देंगे। पहले महीने में इंडस्ट्रीज जो मैंने बताई है, ये आप खुद भी ढूंढ सकते हो। वो इंडस्ट्री के परचेस हेड्स को ढूंढना शुरू करो। लिंक्डइन में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। उनको मैसेज करो, फोन नंबर होगा तो फोन करो, उनको बोलो ये मैं कर सकता हूँ, आपके साथ अफिलिएट करना है, आपके साथ काम करना है मुझे। फोर्थ, क्रिएट एजुकेशनल कंटेंट। अगर कोई बंदा आज आपको काम नहीं देता है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसके पीछे पीछे जाना है। और पीछे पीछे क्या जाओगे? अच्छा अभी ऑर्डर देना है क्या, अच्छा अभी ऑर्डर देना है क्या, ऐसे तो नहीं जा सकते ना। तो पीछे पीछे कुछ वैल्यू ऐड करते जाना है। तो आज अगर मैंने फोन किया और मैंने बोला फला ढिकना आप, मैं प्रिंटिंग कर सकता हूँ, इस प्रकार के स्टिकर बना सकता हूँ, आप जो मशीन बना रहे हो पीपी इक्विपमेंट्स की, उसके लिए, वो बंदा बोलेगा नहीं अभी तो मुझे जरूरत नहीं है, या तो मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, मैं उसको एक और वीडियो बना के भेज दूंगा कि देखो पीपीई इक्विपमेंट्स में जब स्टिकर प्रिंट होते हैं मशीनरी के, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब अगर वो प्रॉब्लम मुझे आया है तो मैं सडनली बोलूंगा हाँ यार ये तो प्रॉब्लम मुझे आया था, इसको शायद सोल्यूशन मालूम है, और मैं फोन करूंगा। तो एक ना के अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत आसान है ये करना। आप सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है, राइट? बस फोन ही स्मार्ट रह गया है। वो स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज करेंगे तो स्मार्ट स्मार्ट वीडियोस निकलेंगे, जो स्मार्ट स्मार्ट मार्केटिंग होगी, क्विक क्विक मार्केटिंग होगी, और उससे सेल्स अनलॉक हो सकता है। पांचवा, धंधा शुरू किया, धंधे के लिए लोग आए। ऐसा नहीं हुआ है कि लोगों को हायर करना था इसीलिए मैंने धंधा शुरू किया। तो धंधे के लिए अगर लोग आए, तो आज अगर धंधा चेंज हो गया है तो लोग भी चेंज होने चाहिए। इसमें कोई इमोशनल वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। प्लेन में उड़ते हैं तो हमें बताते हैं ना, दूसरों की सहायता करने से पहले ऑक्सीजन मास्क खुद लगाएं। आप एम्प्लॉय तभी कर पाओगे जब आप बचोगे। तो रिव्यू योर स्टाफ ऑन द स्किल्स दैट यू रिक्वायर नाउ। अगर वो स्किल्स नहीं है तो आप उनको हेल्प कर सकते हो, पर अगर वो हेल्प ज्यादा टाइम तक किया तो आपने ऑक्सीजन मास्क निकाला हुआ है, आप उसको पगार दे रहे हो। तो रिप्लेस क्विकली, गेट पीपल हु कैन डू द वर्क। डोंट लुक, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लुक टू गेट द वर्क यू वांट। गलती करोगे। फाइंड वेज टू गेट द वर्क अवेलेबल जो है मार्केट में, उसको कैसे कर सकते हो ना, वो डायरेक्शन में सोचना शुरू करो। जो आप काम आपको करना है उसके सर्च में मत जाओ, दिस इज नॉट द टाइम। तो ये 6 पॉइंट्स अगर आपने समझ लिए, अपने दिल में उतार लिए, तो आप एक्शन में चले जाओगे। नाउ मैं, आप बोलोगे कि यार बहुत ज्ञानबाजी किया, ठीक है, तो मैं आपको हेल्प भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जैसे जैसे आप आगे जाओगे गड़बड़ी होगी, और गड़बड़ी होगी, सवाल आएंगे, और वो सवाल जब आएंगे तब आंसर देने वाला कोई तो चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रोपेल विथ हार्दिक ये नाम का एक यूट्यूब चैनल है। अभी आपका स्मार्टफोन जो है ना, फटाफट निकालो और ये जो स्लाइड आपको दिख रही है ना, उसको फोटो ले लो, जिससे आपको मेरे चैनल का नाम याद रहेगा। ये फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं देना है। आज आप देखो, आप क्या एक टॉपिक आ रहा है, स्ट्रगलिंग टू फाइंड टाइम फॉर ग्रोथ, नो स्टाफ और शॉर्ट स्टाफ। बहुत सारे जन का ये प्रॉब्लम है। मैं ये सब कर रहा हूँ, तो ये सब नई नई बातें जो बोल रहे हैं ऑनलाइन जाना चाहिए, पर टाइम किसको है? तो ये वीडियो आपको बताएगा टाइम निकालना कहाँ से है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स में मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। करंट अफेयर, जैसे मैंने आपको 12 लिस्ट दिए, वैसे और भी मैं करंट अफेयर पे बात करूंगा। आप वो वीडियोस देखें, फ्री में है, और अपने आप को हेल्प कीजिए। ये बहुत ही इजीली मैं आपको ये हेल्प कर सकता हूँ। सेकंड, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा प्रॉब्लम जो है ना वो अलग है, जो आप वीडियो में बता रहे हो वो सही है, पर मेरे प्रॉब्लम में उसमें और 3-4 फैक्टर्स हैं, नो प्रॉब्लम। आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, मेरे साथ फ्री में, नॉट अ सिंगल रुपी चार्ज, फ्री में वन टाइम वन ऑन वन
नॉट इन ग्रुप, वन ऑन वन, ग्रुप में नहीं, वन ऑन वन कोचिंग करेंगे। आपके स्पेसिफिक सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा। कैसे जवाब होते हैं मेरे, ये जानना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको जहाँ पे मैंने वन ऑन वन कोचिंग की है लॉकडाउन के दौरान, और मैंने लोगों को बताया है उनको क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस आदमी में थोड़ा अक्ल है, आप भी वो कर सकते हो। अगेन फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरे को हर रोज क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप मेरे प्रोपेल बोर्ड में ज्वाइन हो सकते हो। जिगर 17 जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन में पैनल पे, वो हमारे क्लाइंट हैं। तो जिगर 17 वाज अ पार्ट ऑफ द बोर्ड जब हम फिजिकल बोर्ड रन करते थे। आज हम ऑनलाइन पे बोर्ड रन करते हैं और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं। मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ, इनवाइट, कम, अटेंड, सी इफ यू लाइक इट। ओके, जिगर 17 कैन बी रीच्ड आउट। जिगर, विथ योर परमिशन आई कैन सेंड यू द इनवाइट, forward it to anybody who wants to come. Again, free invite to attend one meeting. Come, देखिए आपके काम का है, अटेंड करिए। Now I want to leave you with one single thought. Managing a problem does not make it disappear. कैसे कैसे जुगाड़ करके 1-2 महीना और खींच लेंगे is managing the problem. उससे प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है। It does not disappear. Only solving it disappears it. So प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो और सॉल्व करने के लिए जाओ। और अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो मेरे वेबसाइट पे आओ, मेरे पास से सॉल्यूशन लेके जाओ। मेरे यूट्यूब वीडियोस देखो, उधर से सॉल्यूशन लेके जाओ। मेरे बोर्ड में आओ, वहां से सॉल्यूशन लेके जाओ। पर जब तक सॉल्यूशन नहीं मिले तब तक रुकना नहीं, क्योंकि अगर आप रुक गए और आपका कॉम्पिटिटर नहीं रुका तो जो थोड़ा बहुत पानी बचा है ना, वो पानी आपके पास आने के बदले उसके पास चले जाएगा। दिस इज द वे यू गो अबाउट अनलॉकिंग योर सेल्स। थैंक यू वेरी मच। जिगर, ओवर टू यू। Thank you, Hardik. You can just stop sharing your screen, please. Yeah. Okay, so we will directly go into questions which have been asked by the visitors here. So we can start with the question. It is by Deep Raj Kanodia, Unique Printers Private Limited. How to grow our business through digital media and marketing in COVID-19 times? Yeah. So the first thing first is educational marketing is the only marketing that will work right now. किसी को भी चाहिए नहीं कि वो कोई भी उनको बेच के जाए. Everybody wants help. So if you can talk about how you can help people by not having them make mistakes which they make during printing, then they will appreciate you. So मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एजुकेशनल बेस्ड मार्केटिंग आप मल्टीपल तरीकों से कर सकते हो. वीडियोस बना सकते हो, ब्लॉग्स लिख सकते हो, ईमेल्स भेज सकते हो. यू कैन गो टू क्वोरा एंड गो अबाउट आंसरिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर फील्ड. यू कैन क्रिएट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक इकोसिस्टम बना के वहां पे आप मार्केटिंग कर सकते हो. हाउ टू ग्रो योर बिजनेस थ्रू डिजिटल मीडिया अगर आप ये पूछ रहे हो, देन लेट मी टेल यू दिस. अगर हम सोच रहे हैं कि हम एड्स करना चाहिए फेसबुक में या लिंक्डइन पे या कहीं पे भी, एड्स विल नॉट वर्क अनलेस यू नो व्हाट पीपल लाइक. तो मेरा सजेशन ये होगा कि पहले फ्री में जो एजुकेशन करना है वो एजुकेशन कीजिए. जैसे आपको समझ में आता है कि इस प्रकार की चीजें लोगों को पसंद है, फिर उसको एड का स्टेरॉइड दीजिए. दूसरी चीज, डिजिटल पे बिजनेस ग्रो करने के लिए इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव अ कंटेंट हेवी वेबसाइट. यानी एक ऐसा वेबसाइट जिसमें इतना कंटेंट भरा हुआ है प्रिंटिंग के बारे में कि वो कोई भी वर्ड से लोग बंदा सिलेक्ट करे ना, सर्च करे गूगल पे, तो वो वर्ड्स के वजह से आपके वेबसाइट पे आए. इसका मतलब मैं किसी प्रोफेशनल को दे के एसईओ कराने की बात ही नहीं कर रहा हूँ. वो प्लस कंटिन्यूसली क्रिएटिंग कंटेंट फॉर योर वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज, वेबसाइट में ऑर्डर देना
should be easy, order track करना should be easy, और अभी भी लोग फिजिकल वर्ल्ड से कंप्लीटली ऑनलाइन पे कंफर्टेबल नहीं हुए हैं। तो आपके वेबसाइट पे अगर पॉसिबल है आपके लिए, तो आपके साथ मीटिंग करना उसका ऑप्शन होना चाहिए। तो कोई बंदा आपको मीटिंग रिक्वेस्ट वहां पे से दे सकता है, एंड देन यू कैन गेट ऑन जूम कॉल एंड असिस्ट दैट पर्सन। अगर आप अपने लोगों को लाइव बिठा सकते हो अपने वेबसाइट पे के चैट करे और प्रोस्पेक्ट्स के साथ, तो वो भी आपको करना चाहिए। सो दैट इज हाउ योर एंटायर ई कॉमर्स नहीं बोलूंगा मैं, बट एंटायर डिजिटल इकोसिस्टम आपको बनाना चाहिए। Okay, I'll go to the next question. It is by Mr. Mohit Saini of Technoa Imaging Systems Private Limited. How can we create a demand and supply balance to achieve break even amid the uncertainty? या सो यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ ब्रेक इवन, क्योंकि हम लोग जो भी सोचेंगे ना उससे हमारा 20% नीचे ही होगा। तो ब्रेक इवन पहले तो मत सोचो। दूसरी चीज, यू डोंट क्रिएट डिमांड, डिमांड इज ऑलरेडी देयर, यू गो वेयर देयर इज डिमांड। नाउ यू गोट टू फिगर आउट डिमांड कहाँ पे है। मैंने आपको बताया वन वे, थोड़े इंडस्ट्रीज बताया वहां पे डिमांड है, वहां पे जाना कैसे है वो देखिए। बारिश आप करवा नहीं सकते, पर अगर आपको भीगना पसंद है तो जहां बारिश हो रही है वहां जा सकते हो। दैट इज व्हाट वन शुड डू। Thank you, Hardik. Third question is from Mr. Kiran of Aura The Creation. How soon will be the print production activities resume? They have never stopped, my friend. Their printing activities are on as we speak, but it's not on for all. It is on only for people who figured out कि मुझे कहाँ जाके कौन से कस्टमर को प्रोस्पेक्ट करना है। प्रिंटिंग एक्टिविटीज खत्म नहीं हुई है। देखो जितने ढीठ हम लोग सब है ना, हम लोग चेंज नहीं होते। आज ये वेबिनार अटेंड किया, आई एम टेलिंग यू 80% ऑफ देम विल डू नथिंग। बिल्कुल उसी तरीके से बाहर का मार्केट भी वैसा है, वो लोग अभी कुछ नहीं कर रहे, पर वो लोग ऐसा नहीं कंप्लीटली सडनली सब मोबाइल पे चले जाएंगे, सब सॉफ्टवेयर बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो प्रिंट करने वाले हैं वो प्रिंट अभी भी करेंगे। ये जूम स्काइप है ना, पेपर वाली बुक्स पड़ी हुई है, मेरे पास किंडल है, आईपैड है, सब कुछ है, पर जब बुक पढ़नी होती है ना तो मुझे पेपर वाली बुक ही पसंद है। तो ये आदतें जो है ना, ये चेंज रैपिडली नहीं होने वाली, पर ये जो डेंट है ये चेंज हो जाएगा। मतलब अगर पहले 100 जन बुक पढ़ते थे तो अभी भी 30 जन बुक पढ़ेंगे, पर बाकी 70 जो है ना उसको आपको ढूंढना पड़ेगा ऑडिबल पे, अमेजोन पे जाके, डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपनी बुक करके। तो वो करना जरूरी है। सो इट्स नॉट स्टॉप्ड, you probably don't know where to get your business from, उस पे ध्यान दीजिए। Okay. Next question is from Hariom Dave from Jetsi Global. Post lockdown, how do we pitch a sale for heavy machinery, and what are the prospects that entrepreneurs will invest in capex? तो यहाँ पे हैवी मशीनरी में इन्वेस्ट करने की बात चालू है या हैवी मशीनरी इंडस्ट्री को प्रिंट करने की So बात? basically, he is a supply. He wants to supply machinery to print industry. He wants to supply machinery to print industry. Yes. So yes, why not? एक प्रिंटर जो सही तरीके से प्लेस्ड है, जिसके पास मार्केट है एक पर्टिकुलर काइंड की, वो प्रिंटर बिल्कुल आपकी मशीनरी लेगा। हाँ, द क्वेश्चन इज अगेन फॉर यू, आर यू रनिंग बिहाइंड प्रिंटर्स जिनका बिजनेस खत्म हो चुका है? इफ द आंसर टू दैट इज यस, देन इट विल नॉट हैपन। आई विल टेल यू एन एग्जांपल। एक मेरा क्लाइंट है, अभी अभी अक्वायर किया है, उसका टर्नओवर करोड़ों से लेके वो सीधा 15 लाख पे आ गया था लॉकडाउन की वजह से। ही इज इनटू कटिंग टूल्स। ओके, अब वो कटिंग टूल्स का जिसको भी वो सप्लाई करता था, वो लोग कोई ले नहीं रहे उसका माल। जब हम लोग ने हमारा कंसल्टिंग शुरू हुआ तो हमने उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को और उसके एंड कस्टमर्स को, जो भी हमारे पास दिखता, उसको कॉल करना शुरू किया। सो आउट ऑफ द 20-30 कॉल्स दैट वी मेड, वन डिस्ट्रीब्यूटर गेव अस दिस इंफॉर्मेशन के ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेरा अभी भी सेल हो रहा है, पर मुझे मालूम नहीं है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैं कंसिस्टेंटली जाऊं कैसे, क्योंकि मेरे पास लोग नहीं। Now, a person hiring a person cost is what, $20,000? Or automobile sector is huge. There are 4 clusters of automobile sector in India. One of it is Bombay, Pune, Aurangabad. अगर ये क्लस्टर में हम 2 आदमी भी डाल देते हैं तो सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर को हम कैप्चर कर सकते हैं, पर हमने ये सोचा ही नहीं था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ले रहा था अब तक। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को पूछा नहीं तो किसको बेचता है, क्योंकि पूछा नहीं, मुझे मालूम नहीं है। So now by identifying information like this, you can place yourself well.
So if you want to sell heavy machinery, figure out which kind of printers are doing good. How will you know that? You will know that by identifying which kind of industries are working और उन लोग अपना printing का काम किन लोगों के पास से कराते हैं. If you figure that out, you will be able to sell your machines to the printer. Yes, Siddharth. Okay. Next question is from Mr. Rajan Parekh from Onus Impression. What will be the competition level in sales conversion? This is a very beautiful question. So, Rajan, nobody can tell you a precise answer to this because दो थॉट्स हैं इसमें. एक थॉट ऐसा है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है फिलहाल, और एक आंसर ऐसा है कि कंपटीशन बिल्कुल नहीं है. नाउ आई वुड सब्सक्राइब टू द सेकंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन कि कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज जब सब साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब इंसान स्ट्रेस में होता है ना तो वो पॉज हो जाता है, वो रुक जाता है, वो कुछ समझ में नहीं आता क्या करना. आज के डेट में सिचुएशन हर इंडस्ट्री में बिल्कुल वैसी है, which means even if there are people who can do, they are not doing. If you do, there is no competition. There is no competition. But you have to start doing, start researching. अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, मार्केट ढूंढो, ये मार्केट कैसे ढूंढनी है तो आपको पहले समझना है. गूगल रिसर्च करके समझ सकते हो कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अभी अच्छा कर रही है. सर्च, यू विल गेट थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स. रीड 100 ऑफ देम. चलो 100 नहीं पढ़ सकते, 50 पढ़ो. 50 नहीं पढ़ सकते, 30 पढ़ो, 10 पढ़ो, और वो 10 पढ़ के जो भी आपको समझ में आता है उन लोगों को लिंक्डइन पे बात करना शुरू करो. एक्शन इट. जब आप करोगे तभी समझ में आएगा. वो बोलते हैं ना, शादी जब तक नहीं करते तब तक समझ में नहीं आता शादी होती किस बला का नाम है. बस ऐसे ही है, थोड़ा करो तो आगे का रास्ता दिखेगा. So Hardik, a lot of people have asked this question, that digitization is a problem that has taken over printing job orders. Okay, many companies are resorting to digitized annual reports, magazine, journals, etc., that are now not being printed at all. Also, we have seen that government directives like LIC has directed that diaries and calendars would not be printed for this year. Similarly, e-brochures have come up, videos have come up, WhatsApp messages are going, has replaced the printed formats. So what do you suggest in this case? So there are two things. One is that these annual reports, magazines, journals, they are not going to disappear from our planet. ये आप लिख के ले लो. क्यों? Because think of your father, think of your uncle, think of all the elderly guys that you know of. Most of them will not be able to comfortably migrate to digitization. जितनी भी बड़ी कंपनी है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चाहिए एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने की. वो एनुअल रिपोर्ट्स अगर उनको ईमेल करेंगे तो आई एम नॉट श्योर इफ 100% ऑफ देम आर स्टिल इक्विप्ड टू रीड इट. सो दे आर गोइंग टू कम, बट द मार्केट इज गोइंग टू श्रिंक. तो जो 100 को बेचते थे अब आप 20 को बेच रहे हो, बाकी 80 का भरपाई करना पड़ेगा. वो 80 का भरपाई करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? दो ऑप्शन है. या तो फनल इतना ज्यादा बढ़ा दो कि वो 80 का भरपाई हो जाए. अगर वो नहीं कर सकते हो तो इसको प्रॉब्लम के तौर से मत देखो. डोंट लुक एट दिस एज अ प्रॉब्लम, लुक एट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी. किसी ने आपके सर पे गन रख के नहीं बोला ना कि आपको पेपर पे प्रिंट करना ही पड़ेगा वरना मैं तेरी जान ले लूंगा. डिजिटाइजेशन में जा रहा है तो वो डायरेक्शन में आगे बढ़िए. आपको करने नहीं आता है तो जिसको करने आता है, जिसके साथ आप अभी काम कर रहे थे प्रिंटिंग में, जो आपको काम ला के देता था, वो ग्राफिक डिजाइनर्स के साथ कोलैबोरेट करिए, एफिलिएट करिए. यू हैव द कस्टमर्स, ही हैज द स्किल. डू द बिजनेस टुगेदर. चेंज करिए अपने बिजनेस करने के तरीके को. डोंट फाइट इट. द मोर यू फाइट द चेंज, द मोर यू विल डैमेज योरसेल्फ. ये समझ लो कि एक ब्रिज है, आपको यहां से यहां कूदना है. यू हैव टू लिफ्ट दिस ओल्ड लेग. अगर वो आप उठाओगे नहीं तो गिरोगे खड्डे में. So don't look at this as a problem. This is an opportunity. Look at it and jump before all jump. भेड़ लोगों में, भेड़ बकरी जो होती है उसमें और इंसानों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि भेड़ जो होता है वो एक अगर सीधा सीधा जा रहा है ना, उसके पीछे दूसरा भी मुंडी हिलाते सीधा सीधा जा रहा है. They are not leaders, they are followers. We have the ability of imagination. We can think for ourselves. So don't wait for the entire industry to go in one direction. Then you will say, अरे सब लोग ये कर रहे हैं तो भी मैं ये करूंगा. And then you cry कि oh shit, you know what? क्रेडिट देना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है. क्यों नहीं देना पड़ेगा भाई? आप सबसे आखिर में आए वो इंडस्ट्री में.
So take the first move, go into digitization. Nobody is stopping you. You have the skill. आपने इतना digitization देखा है, use it to your advantage. That's what I would suggest. Thank you, Hardik. So coming to the same point, earlier we've discussed the same that now what has happened due to COVID, people are meeting on Zoom. Brochures are not exchanged, visiting cards are not again not exchanged, people are not traveling. So that's like also travel related of conferences, exhibitions, etc. Has taken a hit. So lot of marketing collateral which we were printing before has now gone totally out. So a lot of commercial printing jobs are not there. So what do you Correct. think regarding this here? Yeah, so it's not there. What is there to think? Don't focus on what is not there. Focus on what is there and what can I do about that. See, if we all remain stuck with our past, then it is our problem. We have to leave the past and look at what is going to happen or is happening right now. अगर आप brochure print करते थे, so I'm sure you can print a manual. और अगर manual print कर सकते हो, तो वो इंडस्ट्री में जाके manuals print करो. अभी हम आपके आपस में एक क्वेश्चन आया था ना, प्रिंटिंग मशीनरी. वो प्रिंटिंग मशीनरी के ऊपर बटन तो होंगे, वो बटन कहीं तो प्रिंट हुए होंगे. अगर वो प्रिंटिंग मशीनरी नहीं, कोई भी टाइप की मशीनरी बिक रही है, तो वो तो प्रिंटिंग का काम है ना. अभी नाउ द क्वेश्चन इज, यू मे नॉट हैव द प्रिंटर ऑफ दैट काइंड, नो प्रॉब्लम. आप इतना बड़ा ग्रुप है आपका, कोई तो ये ग्रुप में होगा ना जो वो टाइप की प्रिंटिंग कर सकता है, उसके पास से करवा लो. टेक दैट ऑर्डर, affiliate, collaborate, but stick to the past because that will not help. Okay. So in our printers community, Hardik, a lot of us have seen that people are asking, like one of our senior printer, Mr. Vinod Jain, has asked a question that pandemic has further accelerated digitization. Under the circumstances, is there any hope for commercial printing? So in commercial printing, a lot of things come in, like education books come in. For example, uh, brochures, catalogs. Here we've mentioned that education notebooks are not being printed because schools and colleges are going online, and number of guests invited in a wedding ceremony has curtailed from 50 guests, and printing of wedding card industry has gone affected badly. Every sector in our industry is getting affected. What is the solution? Again, the solution remains the same. पहली बात तो 100% अफेक्ट नहीं हुआ है. अगर ये कोई बोल रहा है तो उसके दिमाग में वो एक्स्ट्रापोलेट करके बोल रहा है. And this I can tell you by experience. My wife is currently doing MBA from XLRI. She is still getting her printed books couriered from XLRI to my house. I recently couriered, मेरी daughter जो है वो अभी सूरत गई है, मेरी साली के यहाँ पे रहती है, and the school has started online. So I had to courier all her books, physical books, to Surat. So is that not happening? Of course it is happening. हाँ, quantum reduce हुआ है. So वो quantum reduce होने का जवाब क्या है? Go. Don't have one XLRI. Have thousands of MBA schools prospected. अभी वो अगर आप नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है, या वो नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास उतना बैंडविड्थ नहीं है तो प्रॉब्लम है. देन अडॉप्ट व्हाट इज न्यू. वी हैव बीन इग्नोरिंग डिजिटाइजेशन. जैसे मैंने बताया, डिजिटाइजेशन इज नॉट कम आफ्टर पैंडेमिक. जूम वाज अ कंपनी बिफोर पैंडेमिक ओनली. पर अगर मैं आपको पैंडेमिक के पहले बोलता जूम पे आ जाओ तो आप लोग सभी लोग मना कर देते. आज सभी लोग आ गए हो जूम पे, एंड फॉर अबाउट लास्ट 40 मिनट्स यू आर लिसनिंग टू मी. यू आर कंफर्टेबल. व्हाई? बिकॉज व्हेन we are left with no options, we take action. तो जो नया आ रहा है उसको अडॉप्ट कैसे करने का, I think that's a more wiser question than to ask, okay, when will the old happen? When will the old come back? When will the old things happen? नहीं होगा. This is the new normal. ऐसा ही चलेगा. Are you ready for the new? If you're not, you'll get washed out. If you are, then ask the right question. How do I adopt the new? How do I go into digitization? What are the kind of skills that I already have that I can use to go in the new world where everything is digital?
or most of it is digital? I think that's the right question. Asking right question is more important than anything else right now. Okay. Uh, so we have one more question in our Q&A box. People like person has asked that with the pre-COVID overcapacity status in the print and the packaging industry, collaboration and affiliation is definitely possible, you know. But the harsh reality is, however, in consolidation of the market, how does one ensure sale at the right price at such time? Hardik, No, in our industry, we have seen that people are actually selling at lesser than the cost, you know, because of overcapacity, because they have invested in machineries and now they don't have the work. So they are reducing price and, you know, doing jobs. How can we control that? so you don't have to control that. You just have to wait and continue doing the right things. They will get controlled by themselves. See, जब भी price हम deduct करने की बात करते हैं, and we say that it is a competitive market, I completely disagree to that. It is not a competitive market. It is a market which is saturated. So competitive is a wrong word. It is a saturated market. Saturated market means you can do only one thing: get out of that market. Period. Now this time it is not a saturated market. Some people, because they don't have good answers, or maybe they have good answers but they are not adopting those good answers for I don't know what, those guys are going to do things like this. And if they do it, let them, because जितना वो ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा वो खुद लॉस में जाएंगे. Ultimately they will have to give up at some point. You have to be ready कि जब वो लोग give up करें, you are able to pick up that opportunity. Okay, thanks, Hardik. Now I think we can take live questions. We have Sure. people, you know, who have raised hands, and we can ask them to, you know, ask questions. So Sure. I would allow Medha to talk. Medha, please unmute yourself and you can ask the questions. Actually, by mistake, that hand was raised, so I'd actually reduced. But during the course No of problem. the further questions, I will let you know if there's anything. But it was Okay. really a very enjoyable session. I've really enjoyed it. Sitting in Thank you. office, Thank and you. I'm trying to avoid all disturbances by locking the door from inside. It's very nice. So to unlock sales, I have locked my cabin. Thank you. Thank you. Okay, we had one more person raising his hand. I will allow him to talk. Mr. Maruti, please unmute yourself. Yeah, you can ask a question. Yes, sir. Please go ahead. I think his connection has some issue. Mr. Maruti. No, I think you're आप अभी भी mute पे हो. So you may want to unmute. I can unmute you. Hold on. I'll unmute. No, I think his connection is the problem. Yeah. I'm not able to unmute also. Anyone else in the attendees want to ask any questions? Mr. Prem, do you want to ask? I can allow few people to talk right now. Mr. Sanjay. It is either all clear या all clear the session. Prem, you can unmute yourself and ask a question if you want. Mr. Sanjay, you can also unmute yourself and ask a question. Anyone else in the attendees who want to ask? Yes, Prem. Okay. Hardik, with this difficult times, it's a great boon to have you on this webinar and understand how to go forward. So I have a small question which says we are into digital business and it's normally to do with small print run jobs. So do you think in this scenario, does a customer accept all small jobs, or he should actually look forward only to have big run jobs only, so that his profits are better, or probably margins, operating costs are better leveraged? Yeah, so I would suggest, in my opinion, if I was you, I would go for big jobs only. अगर वो time पे while I hunt for big jobs, अगर small jobs मुझे आ जाते हैं, I will do it. But if I had to sit on a strategy table and figure out what do I want to do,
then my entire effort will be to get good jobs. Great. Thank you. Thank you. Anyone else who has a question, please feel free to raise your hand. I am allowing few questions because we have time in hand. Urvesh, I have added you if you have any questions. Mr. Vinod Jain, I have added you. If you have any question, please unmute and ask. Yeah, it's a wonderful talk by you, and we really appreciate whatever you have said. And I think this is the way forward. You have said it, and we should all follow this. No point getting disheartened. It's the time to fight and show your strength. Yeah, this is what has been very well said. Thank you. There you go, Vinod. You want to motivate all the others in this group to also take action. So show your action or take your action and advertise your action so loudly that everybody in your forum kind of gets influenced and takes the action further. Yeah, thank you. All the best. Yes, Mr. Prakash, Mr. Urvesh, Mr. Sanjay. Anyone else has any questions? We can take questions. We have time in hand. I think most of their queries have been solved by the beautiful presentation of Hardik. Yeah. I think we should move ahead with the Okay. program. Yeah. So I will take a poll so that we come to know about this presentation, how the webinar was. Wow. It's my result time. Guys, please vote on this for our feedback. You know, we are inspired by the way you all vote, and like we try to improve ourselves the next time. So please vote. Those who are present, please vote. Even on your mobiles, you get the voting option. Even on the PCs or tablets, you'll get the voting option. So 82% of people have voted. I will wait for 10 more seconds. And then I will show the results. So I'm just ending the poll now. 90% of the people have voted. 84% of the people have liked and they've mentioned excellent. 16% have mentioned good. So Hardik, here you go. Thank you very much, guys. Yeah. Thank you. Thank you. I will now hand over, and before handing over to ये पोल बंद कर दे, yes, जिगर. Yeah. Thank you. So these are the contact details of Mr. Hardik Harsora. His phone number is mentioned, his email ID is mentioned. You all can quickly note it down. I will give you 10 seconds to do that. So Hardik is a dear friend as well. If you all have any query, feel free to contact any of us in Team MMS. We can definitely, invite him once again, or you can have a one-to-one meeting with him. He himself has grown from an office of 200 square feet in Vasai to a 400 square feet in Tardev to a 2000 square feet office in Marine Drive currently. So this has been his journey in his business. So definitely he can help a lot of us as well in, grow in our own business. I will now hand over to Mr. Rahul Kulkarni for the next part of our webinar. Hi, good evening, everybody. Before the vote of thanks, I would like to share the details on our next webinar titled on the title of our webinar is On Concurring with Spirituality. This webinar is on the 31st of July, which is next Friday at 4 p.m. The webinar is in association with Sadhvi Bhagwati Ji Saraswati, President, Divine Shakti Foundation. Kindly do register for the same. Now it gives me a privilege to propose a vote of thanks on behalf of my esteemed association, the Mumbai Mudrak Sangh. I want to express my gratitude and thanks to our speaker, Mr. Hardik Harsora. I'm sure his immense knowledge and thoughts on today's topic
will guide and lead us in a better way ahead. Thank you, Mr. Hardik. Friends, behind every successful webinar that we do lies the hard work and dedication of our committed team. And hence, I would like to thank each and every committee member of our Mumbai Mudrak Sangh for helping in putting up this webinar. Finally, our special thanks goes to all the participants for attending this webinar and making it a success. Thank you so much to all of you, and we look forward to the same in future also. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Jigar, share the screen of our next event. Sure. Thank you, everyone. I'm looking forward to see you all again on next Friday, 4 p.m. This is going to be the last of our 5 sessions in July, which we have completed 4 of them successfully now. And this is the last, but not the least. And I'm sure most of us are, looking in our inner self and outer world during this pandemic. And this webinar will, make us understand, how we can conquer our inner self and the outer world. Thank you, guys. Thank you very much. I will now stop sharing and I will close the meeting. Thank you, everybody. Thank you, Thanks, everyone. Hardik. Thank you. Thank you, Hardik. Thank you, Hardik. Thank you. Thank you, everybody.